फॉरेनर्स भी आते हैं आपके पास हाँ, में यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते इंस्टीट्यूट में? हैं। मैंने बहुत सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने पढ़ाया है। मैंने कॉन्गो को पढ़ाया है, मैंने मंगोलियन को पढ़ाया है, और इराकी, ईरानी, अफगानिस्तान। Good morning, everyone. How are you doing today? You are doing well? So, I welcome to the doubt class. As you all know that, as usual, the doubt class is just conducted on every Sunday. So, in the doubt class, your doubts are just cleared by the faculty, and I hope you must be having a lot of doubts. So, you have to share your doubts with me, your queries, and I'll try my level best to sort out, okay? So, let's get started. मेरे दादाजी आर्मी में रहे थे। पास्ट की बात होगी तो हैड बीन हो गया तो बोलेंगे आप माय ग्रैंडफादर हैड बीन इन दी आर्मी। माय ग्रैंडफादर हैड बीन दी, और मेरे दादाजी आर्मी में रहे, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? माय ग्रैंडफादर हैज बीन इन दी आर्मी। It might be raining outside. क्या बोलेंगे? Yes, it might be raining outside. शायद आप लेट हो रहे होंगे। You waiting for you. Next type. शायद आज मुझे दिल्ली जाना पड़ सकता है। शायद आज मुझे have to go to Delhi today. Have to go to Delhi today. मुझे अवश्य दिल्ली जाना पड़ सकता है। शायद मुझे अगले महीने आगरा जाना पड़ सकता है। तो बोलेंगे I might have to go to Agra next month। क्या बोलेंगे? I might have to go to Agra next month। यानी कि शायद मुझे अगले महीने आगरा जाना पड़ सकता है। शायद उसे अपनी स्टडी ड्रॉप करनी पड़ सकती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप। अब जैसे कहते हैं कि शायद आपने यह मूवी तो देखी होगी, शायद आप वहां गए होंगे, आप वहां जरूर गए होंगे, तो जरूर की जा रही है। तो मैंने कहा कि शायद आपने ये मूवी देखी होगी, तो बोलेंगे यू माइट हैव वॉच्ड दिस मूवी। My name is Gurman Singh and I'm from Knowledge Park 3 from Greater Noida. थोड़ा जोर से बोलो। And I'm currently pursuing my BCA. And I joined this class for improving my English fluency and better communication skills. And I'm feeling quite grateful for that I joined this class. It has filled me with very much confidence and made me able to speak with other people that I would normally shy away from. And I'm very thankful to the teachers who have helped me throughout this journey. Thank you. उनका रिव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे यहाँ के बारे में। तो क्या नाम है आपका? My name is Afghan Khan, and I am here in this institute since last 2.5 months. So I have been, progressing well in this institute under the guidance of Nisar sir. He is an, a fantastic teacher. He can understand the pain point of every single student who is, who is a participant in this entire institute. So it's a very good process of learning. इनका रिव्यू लेंगे। तो आप कितने दिन से यहाँ पे आ रही हैं? So I have been coming here since 1 month, and now I want to introduce myself. Well, my name is Sana Parveen, and as far as my professional qualification, I am pursuing BTech from GL Bajaj Institute of Technology. Regarding my academic qualification, I have done my +2 from CBSE board. Jagat form. So we are going for another review. So please tell me what about this institute and please introduce yourself. So, well, my name is Mehak, and as far as my professional qualification, I am currently pursuing BTech from GL Bajaj Institute of Technology, and I have completed my +2 from CBSE board. This is all about myself. सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को।
देखिए मेरा नाम निसार अहमद है और मैं यहाँ पे एक एज ए सेंटर डायरेक्टर हूँ और मैंने इस इंस्टीट्यूट को लगभग 20 ईयर्स अगो पहले स्टार्ट किया था और माय क्वालिफिकेशन इज़ आई हैव डन MA इन इंग्लिश फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं? एक्चुअली मैं दादरी जो ग्रेटर नोएडा में है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आपने जैसे बताया कि आपने 20 साल पहले ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। यस। तो आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग का इंस्टीट्यूट खोलूं? एक्चुअली मैं उस वक्त MMH कॉलेज गाजियाबाद में स्टडी करता था। ठीक है। तो उस वक्त भी काफ़ी क्रेज था वैसे इंग्लिश स्पीकिंग का। हाँ। तो मेरा एक दोस्त था तो उसने एक कोचिंग सेंटर गाजियाबाद के अंदर ज्वाइन किया। तो मुझसे भी बोला कि भाई आप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने उसके कहने से फिर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो फिर उसके बाद में कोर्स जैसे ही हमने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में फिर मेरे माइंड में आइडिया आया इस फील्ड के अंदर तो बहुत कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया क्यों नहीं मैं इस फील्ड में आऊँ। तो मैं उस प्रोफेशन में मैं फिर आया और फिर हमने इस इंस्टीट्यूट को 2006 में फिर हमने इसको स्टार्ट किया यहाँ पे। आज के टाइम में एक फेमस नाम आपने सुना होगा, खान सर जी। खान सर ने 10 या 15 साल में वो तरक्की की है कि लोग उन्हें पूरे इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जानते हैं। यस। कभी ऐसा सोचा कि मैं अपने इस इंस्टीट्यूट से निकल के बाहर कुछ करूं, ऑनलाइन कुछ करूं? देखिए अभी बहुत जल्दी हम ऑनलाइन आने वाले हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस काम चल रहा है हमारा, ऑनलाइन क्लासेस हम लेकर के आने वाले हैं। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अभी हमारी एक बुक लॉन्च होने वाली है जिसमें हमारा काम चल रहा है। अच्छा। तो हमारी पर्सनल एक बुक होगी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन कोर्सेज भी हम लेकर के आने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो बच्चों की भी डिमांड होती है कि सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास में आते हैं, अदर स्टेट से होते हैं और फॉरेनर्स भी, इवन फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि सर ऑनलाइन आप क्लासेस लिया करें। तो हम भी वहीं पे बैठ करके अपने वहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं आपके पास? हाँ, में यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। में मैंने बहुत सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने पढ़ाया है। मैंने कॉन्गो को पढ़ाया है, मैंने मंगोलियन को पढ़ाया है और इराकी, ईरानी और अफगानिस्तानी। तो वो यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं? यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर जहाँ पे वो स्टडी करते हैं। जैसे कि आप शारदा यूनिवर्सिटी है, NIU है और गलगोटियाज है। तो इस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा। तो एक्चुअली दे आर जस्ट वेरी परफेक्ट इन देयर मदर लैंग्वेज बट दे आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश। तो फिर उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत पड़ती है। वो फ्रेंच जानते हैं या अपनी जो एक नेशनल लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग, तो उसमें वो एक्सपर्ट हैं बट इंग्लिश में उतना एक्सपर्ट नहीं है। तो जब वो यहाँ पे क्लास अटेंड करने आते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश समझने में, लेक्चर को समझने में। टीचर नहीं समझ पाते हैं प्रॉपर तरीके से टीचर को वो, तो फिर वो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की तलाश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनको मैंने पढ़ाया और यहाँ से वो सीख करके गए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे फॉरेनर्स आपने बताया आते हैं, यस, उसमें उन्हें आप यहाँ का जो हमारा इंडियन स्टूडेंट है, आप हम उन्हें पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो उन्हें हम कोई बात हिंदी में समझा सकते हैं क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, उसमें हम उनको समझा सकते हैं। तो आप उन्हें किस तरीके से समझाते हैं? इनको कैसे समझाते हैं, उनको हम कैसे पढ़ाते हैं? सपोज करें कि कोई कॉन्गो है तो फ्रेंच जानता है केवल वो, ठीक है ना? ठीक है। या तो फ्रेंच जानता है और इंग्लिश जानता है, तो वह टूटी फूट इंग्लिश वो बोलता है, टूटी फूट इंग्लिश। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि हम उसके लिए डिक्शनरी डाउनलोड करते हैं जो वो लैंग्वेज जानता है। अच्छा। जैसे फ्रेंच वो जानता है तो फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच, ठीक, और डिक्शनरी होती है हमारे पास में, उसके थ्रू उसको हम समझाते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस के थ्रू समझाते हैं, कुछ उसको एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से वो समझ में आ जाती है उसको सारी। मतलब कि उन्हें पढ़ाने से पहले आपको खुद पढ़ना होता है। ये हो गया ना एक तरीके से। कुछ चीजें हमें भी क्लियर करनी पड़ती हैं क्योंकि एक्चुअली फ्रेंच तो हर बंदा नहीं जानता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बंदा कॉन्गो है तो उसको पढ़ाने के लिए हमें फ्रेंच का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना जरूरी होता है। तो इस वजह से वो डिक्शनरी के थ्रू उसमें पढ़ा। अच्छा, आप जैसे यहाँ पे चारों तरफ आपके यहाँ कॉलेजेस हैं, जैसे सारा नॉलेज पार्क है, ये सारे कॉलेज हैं, तो कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी कॉलेज में बुलाया गया हो आपको,
आपके स्पीकिंग से इस रिलेशन से? मेरे 1-2 कॉलेजेस हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर जहाँ पे मुझे बुलाया था, तो वहाँ पे मैंने स्पोकन की क्लासेस ली हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते, तो आप वीक में 3 दिन आप हमारी यहाँ पे बच्चों की क्लासेस ले सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्पोकन की। तो वहाँ पे फिर मैंने गया था, वहाँ पे जाने के बाद में मैंने कुछ महीने तक मैंने क्लासेस ली। अच्छा, और- इंग्लिश, हाँ बताइए। और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, जैसे कि मुझे बुलाया गया था एलजी में, तो एलजी में भी जो सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी को ट्रेन किया मैंने। वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस मैंने कुछ महीने वहाँ पे कोर्स मैंने कंप्लीट कराया, लगभग 4-5 महीने का। और यहाँ पे आपका टाटा का शोरूम है यहाँ पे, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे भी मुझे बुलाया था, वहाँ के जो जीएम हैं उन्होंने। अच्छा। Yes. तो आप एक, जैसे ये जानते हैं सभी लोग कि ABIL इंस्टीट्यूट जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग का है, तो आपका अभी आपने कोई विज़न बनाया है, कोई मिशन बनाया है? देखिए, हमारा विजन है स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, यानी उनको सशक्त बनाना इंग्लिश बोलने के लिए, इंटरव्यू फेस करने के लिए। ये हमारा जो विज़न है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इंटरव्यू फेस करने में। देखिए, डिग्रीज का होना इनफ नहीं होता आज के दौर में। डिग्रीज बहुत सारे लोगों के पास में है, लेकिन उनके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनके पास में इंग्लिश की गुड नॉलेज नहीं है। तो हमारा जो विज़न है, इस तरह के स्टूडेंट्स को यानी कि पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना, उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव कराना, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प करना, तो ये हमारा विज़न है। अच्छा, आप ये आपके इसमें क्या एज ग्रुप है कुछ कि भी इस तरीके से? इस फील्ड में कोई एज ग्रुप नहीं होता है। एक हमारे पास में 10 इयर्स का बच्चा भी आता है इंग्लिश सीखने के लिए, हमारे पास में एक 60 इयर्स का एक कैंडिडेट भी इंग्लिश सीखने के लिए आता है, तो इसमें कोई एज ग्रुप नहीं होता है। अच्छा, तो आप कैसे मेंटेन करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे Class जैसा कि wise आप आगे? देख सकते हैं कि 2 क्लासरूम्स हमारे पास में हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी कैंडिडेट हमारे पास में आता है तो उसको हम सबसे पहले उसका लेवल चेकआउट करते हैं। ठीक है। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बंदा बीटेक किए हुए है तो उसको इंग्लिश की नॉलेज होगी, ऐसा कोई जरूरी हाँ, नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं। और एक बच्चा 10th पास आउट किया हुआ है तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं उसको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी। तो हो सकता है कि वो 10th क्लास का बच्चा उस बीटेक वाले से ज्यादा इंग्लिश जानता हो। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है कि जैसे ही कोई कैंडिडेट आता है हमारे पास में, तो उसका एक हम लेवल टेस्ट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको बताते हैं भाई आपका लेवल ये है, आपका कोर्स कंटेंट्स ये होंगे, आपका ड्यूरेशन ये होगा, तो उसको अलग बैच में डाला जाता है जैसा उसका लेवल होता है। तो लेवल वाइज हम बच्चों को डालते हैं। अच्छा, मतलब पहले आपने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है एग्जैक्टली कि हम इस तरीके से ये बच्चे बच्चे को लेवल हम ये टेस्ट करेंगे, उसके बाद में जज मतलब करेंगे। क्लास का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं आप होता। खुद उसका एक तरीके से इंटरव्यू लेंगे Yes. छोटा सा, और आप ये डिसाइड करेंगे कि इसको किस वाली कैटेगरी में रखना है। यस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए नहीं आ पाते हैं, जैसे मैंने कई जगह बात की है स्टूडेंट से भी, और मेरे साथ में भी बहुत सारे काम करने वाले हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है कि यार मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं तो मुझ पर तो कुछ भी नहीं आता बोलना इंग्लिश में। देखिए, ऐसे हमारे पास में बहुत सारे लोग आए जो एजड थे, एज में ज़्यादा थे, और बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते थे कि भाई हम इतनी एज के हो चुके हैं तो हम इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास में हर जो एज ग्रुप है उसके लोग आते हैं हमारे पास में। मैंने अभी बताया आपको 60 के भी आते हैं, 40 के भी आते हैं, 50 के भी आते हैं, 10 इयर्स ओल्ड बच्चे भी आते हैं। हाँ, तो हर एज ग्रुप का बच्चा हमारे पास में आता है। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है जिसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी तरह का एज ग्रुप का जो बंदा होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है यहाँ पे क्लास के अंदर। वो अपने आप को ये फील नहीं करता कि भाई मैं इतनी एज का हूँ और तो मुझे यहाँ पे शर्म आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक। तो फ्रेंड, आपने देखा, हमने निसार सर से बात की है, और निसार सर ने बताया कि सबसे पहले ये कोई स्टूडेंट आता है तो उसका एक छोटा सा इंट्रो लेके ये डिसाइड करते हैं कि उसे किस कैटेगरी में रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेजुएट आया और कोई 10th क्लास का बच्चा आया, सबको मतलब 10th क्लास के एक साथ हो गए और ग्रेजुएट एक साथ हो गए, नहीं। मतलब ये खुद एक बार एक इंट्रो लेके उसके बाद में ये डिसाइड करते हैं कि इसको किस वाले कौन से इस ग्रुप में रखना है। और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, फ्रेंडली, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो। अच्छा, कोई अगर यहाँ पे आना चाहे तो किस तरीके से आ सकता है?
देखिए- एड्रेस क्या है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, थोड़ी पूरी डिटेल बता दीजिए व्यूअर्स को। इसको बोलते हैं जगत फार्म मार्केट, गामा फर्स्ट जगत फार्म मार्केट, और पंजाब नेशनल बैंक के जस्ट बराबर में होता है हमारा इंस्टीट्यूट, फर्स्ट फ्लोर पर। कोई Greater कॉन्टैक्ट Noida। नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9873917860। तो फ्रेंड, आपने निसार सर का इंटरव्यू देख लिया, और आपको ये हमारा इंटरव्यू, हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। निसार सर, एक बार बता दीजिए। देखिए इनका चैनल का नाम है मोहम्मद आबिद 01, सो प्लीज इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।